یہ آج کی تلاوت پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام اس کا 6 باب اس کی 19 آیت۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح قدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ دیکھیں گے یہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں جیسے خواتین ڈے کی بات ہو رہی ہے، خواتین ڈے منائے جا رہے ہیں، لیکن آج ہم جس بات کو سیکھنے جا رہے ہیں، جس بات کو ہم جاننے جا رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، ہمارے خاندانوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیں کس طرح مسیحیت میں رہ کر، اپنے خداوند میں رہ کر، اپنے خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کس طرح ہم نے کلام الہی کو پہلا درجہ دینا ہے۔ بہت دفعہ ہم دنیا کی رسومات، دنیا کی بات جو ہے اس کو فوکس کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ماحول ہے، ہم کہتے ہیں یہ فیشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے مکمل ہماری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، مکمل طور پر ہمیں بیان کرتا ہے رشتوں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کلام مقدس میں ہم ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم مختلف ذرائع سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کے لیے کیا کریں، لیکن ہمیں بائبل مقدس کی طرف رخ کرنا ہے۔ جب بائبل مقدس کو ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اس کو جانتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر اپنی زندگی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ہم نے دنیا میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے اور ہمارا دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں خدا نے کس لیے بھیجا ہے۔ اور خدا کے کلام میں بڑا خوبصورت پیغام جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کو لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ لکھا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے وہ کیا ہے، روح القدس کا مقدس ہے اور جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آج اس خواتین کے ڈے کے موقع پر جب لوگ خواتین ڈے منا رہے ہیں، لیکن آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ ایک عورت کا بائبل مقدس پہ، مسیحیت پہ کیا مقام ہے، اس کی کیا پہچان ہے۔ خدا کے کلام میں ہم سب کے لیے لکھا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی تمجید کرے۔ اور یہاں پر جب پترس کے خط میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اے بیویو تم بھی اپنے شوہر کے تابع رہو، اگر بعض ان میں صحیح کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی لکھا ہے تمہارے پاکیزہ چال چلن، کیسا چال چلن، پاکیزہ چال چلن۔ یہ بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے، ہمیں روحانی طور پر سوچنا ہے نہ کہ دنیاوی طور پر۔ بہت دفعہ ہم خدا کی باتوں کو دنیاوی روپ میں لیتے ہیں، بہت سے لوگ خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کلام کو دنیا کی نظر سے نہیں دیکھنا بلکہ اس کلام الہی کو ہم نے خدا کی نظر سے دیکھنا ہے، کیونکہ خدا کے کلام لکھا ہے خدا روح ہے۔ خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے، اور اس کے پرستار، اس کے لوگ جو اس کا بدن ہے، اس کا مقدس ہے، وہ بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، روح اور سچائی سے خدا کو دیکھ سکے۔ اور یہاں پر خدا آج بیان کرتا ہے ایک عورت کو اس کا کردار معاشرے میں کیا ہونا چاہیے۔ عورت کے مختلف روپ ہیں، عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن اس کا کردار معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ہی ایک قوم کو جو ہے وہ بہتر طور پر لے کر چل سکتی ہے، عورت ایک مذہب کو بہتر طور پر لے کر چل سکتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ سکھانے کے لیے خدا نے اس قابل کو ٹھہرایا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر
بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو تمہارے پاکیزہ چال چلن، اچھے چال چلن، اچھا رویہ، اچھے کردار کی وجہ سے لکھا ہے کہ کیا کرے، وہ خوف دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف آ جائے، خدا کی طرف آ جائے۔ بیوی کے چال چلن، بیوی کے بول چال، بیوی کے رویے، عورت کے کردار سے دیکھا کہ اگر ان کا مرد جو ہے وہ خدا سے دور ہے، وہ بے دین ہے، وہ خدا ان کی حضوری میں نہیں ہے، وہ مختلف مسائل میں پھنسا ہوا ہے، اور جب وہ دیکھے گا تو لکھا ہے کہ وہ خدا کی طرف آ جائے۔ اور اس کے بعد عورت کے بارے میں اور بات لکھی ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ تمہارا سنگار جو ہے کیا ہو، ظاہری نہ ہو، یعنی سال گھودنا، سونے کے زیور پہننا اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ یہاں پر بیان کیا گیا کہ تمہارا سنگار جو ہے وہ ظاہری نہ ہو بلکہ کیسا ہو، وہ باطنی ہو۔ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ خداوند آج اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ پہلا ساموئیل اس کا 16 باب 17 دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے، باطنی صورت یا روحانی صورت۔ ہم یہاں پر دو باتوں کو دیکھیں گے۔ سنگار کا مطلب ہے خوبصورتی، سنگار کا مطلب کیا ہے، خوبصورتی، اور یہاں پر دو باتوں کو ہم دیکھیں گے، ایک ظاہری یا جسمانی سنگار ہے، ظاہری یا جسمانی، اور دوسرا باطنی یا روحانی حقیقی باطنی سنگار کے بارے میں خدا ہم دیکھتا ہے۔ اور خدا آج یہی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے نزدیک کیسے ہو، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا کے نزدیک ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہے جو کیا کرتے ہیں، روحانی طور پر اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو، یعنی سار گھودنا، سونے کے زیور پہننا اور طرح طرح کے کپڑے پہننا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ماحول میں سے گزر رہے ہیں، کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس معاشرے کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا، اس ماحول کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا، بلکہ ہم نے کلام الہی کو بیان کرنا ہے۔ آج کیوں اتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہم نے کلام کی طرف اپنا رخ تبدیل کر لیا، اپنی سوچ کو تبدیل کر لیا۔ ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا یہ ایسے کپڑے پہن رہی ہے، ہم نے بھی ایسے کپڑے پہننے ہیں، دنیا ایسے فیشن کر رہی ہے، ہم نے بھی ایسے فیشن کرنا ہے، اور یہی آج ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے خاندانوں کی تربیت جو ہے وہ ایسے کلام کے مطابق کریں گے تو پھر ہماری بہت مسائل میں کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک عورت اپنے خاندان کو بہتر طور پر سنوار سکتی ہے، بہتر تعلیم دے سکتی ہے، بہتر تربیت دے سکتی ہے۔ کیونکہ کلام الہی کو اگر دیکھیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، بہت زیادہ لمبا میسج ہے، لیکن خدا کے کلام مقدس پہ ہم دیکھیں تو خدا نے عورت کو بڑا کہ مقام دیا ہے۔ عورت پہلے ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، مختلف اس کے جو ہے درجے ہیں، لیکن کلام الہی میں اگر دیکھیں عورت کو خدا نے بڑا ایک مقام دیا ہے، خدا نے بڑا ایک بہت اونچا درجہ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں مسیحیت سے پہلے شاید عورت کو اتنا بلند مقام نہیں تھا، عورت کو جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن خدا نے ہر پہلو میں عورت کو اچھا سمجھا ہے، عورت کو ایک درجہ دیا ہے۔ خدا نے اس کی نمائندگی بھی دی، عورت ایک نبیہ بھی ہے، عورت ایک مقدس جو ہے خواتین میں بھی شامل ہے، جیسے مقدسہ مریم کو خدا نے اپنے بیٹے کی پیدائش کے لیے مقرر کیا، اور خدا نے اپنی نجات کا کام جو ہے ایک عورت کے وسیلہ سے لیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، عورتیں جو ہیں سب سے پہلے قبر پر جاتی ہیں، وہی عورتیں سب سے پہلے یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی بھی پیش کرتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بائبل مقدس میں، مسیحیت میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ مقام کب نظر آئے گا؟ جب ہم اپنے بدن کو خدا کا مقدس سمجھیں گے، جب ہم اپنے بدن کو خدا کے پاک روح کی جگہ سمجھیں گے۔ ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مقدس ہے، اس پہ خدا کا پاک روح بسا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو دنیا میں کیسے پیش کرنا ہے، کس طرح ہم نے لے کر جانا ہے، کیونکہ عورت کے وسیلہ سے خدا نے بہت بڑی گواہی کا انتظام کیا ہے۔
हम देखते हैं निजात का इंतजाम खुदा ने औरत के वसीला से किया, खुशखबरी का पैगाम खुदा ने औरत के वसीला से दिया, और नबिया भी है, और ये खुदा की खिदमत के लिए भी खुदा ने इनको मुकर्रर किया है। और आज अगर ऐसा नहीं है तो खुदा बयान करता है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है वो ज़ाहिरी ना हो, बल्कि कैसा हो, बातनी और रूहानी हो, बातनी और रूहानी हो। और इसके लिए आगे चल के अगर हम देखें तो लिखा है, बल्कि तुम्हारा बातनी और पोशीदा इंसानियत मजाज की गुरबत की गैर फानी राह से रास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। सुन लो, खुदा की कहने है, खुदा कहने कि जेड़ी औरतां खुदा तरस दे, जिन्हां दा श्रृंगार जिहड़ा है वो ज़ाहिरी नहीं बल्कि की है, बातनी है, ਜਿਹੜਾ खुदा ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ पेश करना है, लोगों तक लेके जाना है। तो किस तरह लेके जाना है? सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती ना नहीं बल्कि बातनी ते रूहानी खूबसूरती दे नाल असा खुदा दे कोल लोकां नूं लेके आना है। कलाम च लोगों को मजबूर करके ला, हमें लोगों को कैसे मजबूर करना है? हम दिखावे से नहीं। और यहाँ पर खुदा कहता है कि जो औरतें अपने आप को क्या करती है, ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी रूहानी तौर पर अपने आप को श्रृंगार करती हैं, तैयार करती है, खूबसूरत बनाती हैं, कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि वो उनकी क्या है, खुदा के नजदीक बड़ी कदर है। किन्ना दी कदर होती है? जेड़े ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातनी श्रृंगार करते हैं, जेड़े बातनी तौर पे खुदा ने अपनी जिंदगी में तैयार करते हैं। कलाम मुक़द्दस बयान किया गया है कि उन्हां दी बड़ी कदर है। फिर एक मिसाल भी दी गई है, पुराने आयतनामे च बहुत सारी मिसालां ने। फिर एक मिसाल भी परोसस नूं देण दिया, अपनी कलीसिया नूं, अपने खवातीन नूं खुदा एक मिसाल भी देण दिया। कहंदा अगले जमाने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने शोहर के ताबिया रहती थी। क्या करती थी? वो अपने आप को क्या करती? इसी तरह संवारती। लेकिन कि खुदा के नजदीक पहले क्या कि जो औरतें रूहानी तौर पर अपने आप को खुदा के लिए तैयार रखती हैं, खुदा उनके साथ चलती है, उनका लिबास जो है वो खुदा उनके कलाम के मुताबिक है, उनका उठना बैठना श्रृंगार जो है वो खुदा के साथ है, तो खुदा उनके लिए खुदा के डर और खौफ पे अपनी जिंदगी बसर करती है, खुदा उनके साथ लेकर चलती है, तो फिर खुदा उनको बरकत देता है। आज ये बहुत बड़ा नारा है, हमारी बड़ा जिस्म हमारी मर्जी, लेकिन खुदा कहता है क्या? मुकद्दस क्या कहता है? तुम खुदा का क्या मक़दस हो। हमारा बदन क्या है? खुदा का मक़दस है। हमारे बदन में खुदा का रूह होना चाहिए, हमारे बदन में खुदावंद की मौजूदगी होनी चाहिए। हमारा बदन जो है ये खुदा के लिए मुकर्रर किया, ये खुदा ने बनाया, और खुदा चाहता है कि इसमें आकर मैं अपना जलाल ज़ाहिर करूं, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारे कामों को लेकर तुम्हारे बाप की तमजीद करें। और खुदा कहता है जो औरतें क्या करती हैं? खुदा के साथ चलती हैं, जो खुदा के कलाम को आगे लेकर चलती हैं, जो खुदा के कलाम को मॉडल बनाते हैं, अपने सामने रखती हैं, लेकिन उनकी बड़ी कदर है, उन्होंने बड़ी कदर है। किसी नजर से? लोगों की नजर से नहीं। लोग शायद समझ के चंगे नहीं है, इन्होंने कोई फैशन नहीं किया, ये सादा नहीं है, बहुत चंगी नहीं, ऐसा ही लगन नहीं, लेकिन लिखा खुदा की नजर में उनकी क्या है? कदर है। खुदा की नजर में उनकी कदर है। आगे चल के खुदा उनके कलाम कहता है अगले जमाना पर में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें, जो खुदा पर उम्मीद रखती है वो मुकद्दस औरतें हैं। कलाम बयान करता है जो खुदा पर उम्मीद रखती हैं, कलाम में लिखा इज्जत दौलत शोहरत खुदा की तरफ से मिलता है, इंसान की तरफ से नहीं मिलता। इज्जत कहां से मिलती है? खुदा की तरफ से मिलती है, दौलत खुदा की तरफ से मिलती है। और खुदा का कलाम बयान करता है अगले जमाना पर में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती। किस तरह? कलाम के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो अपनी जिंदगियों को बसर करती थी, वो अपनी जिंदगियों को इसी तरह संवारती थी। लिखा है कि वो
क्या करती थी, अपने शोहर के ताबिया रहती थी, ताबियादारी सिखाई गई। हम कलाम इलाही में अगर इस बात पर फोकस करें, ध्यान करें, तो बहुत सी मिसालें हमको मिलती है। अगर हम इफ्सियों 5 में देखें तो वहां पर लिखा है, आए बीवियों अपने अपने शोहरों के ऐसे ताबे हो जैसे खुदावंद की जैसे ताबे हो, वैसे ताबेदारी अपने अपने शोहर की भी करनी है, क्योंकि शोहर बीवी का क्या है, सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने अपने शोहर के ताबिया रहें, ताकि कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में न दाग, न झुर्री, न कोई और चीज हो। यहाँ पर खुदावंद बयान करता है कि ताबेदारी सिखाई गई है। खुदावंद ताबेदारी बयान करता है कि और तुम्हारे साथ जो है वो क्या है, मर्द है, मर्द का साथ कौन है, यीशु मसीह है। ये ताबेदारी सिखाई गई है। और इसी तरह आगे चल के लिखा, इस तरह शोहरों को भी लाज़िम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें। और खुदावंद के कलाम में आगे चल के लिखा है, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। जब दो एक सलाह होगी, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम दो जमीन पर बांधोगे तो आसमान पर भी बंध जाएगा। जो जमीन पर दो मुत्तफिक होकर बात के लिए राजी हो जाते हैं, तो आसमान पर भी वैसा हो जाता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि अपने शोहरों के ताबे रहो। चुनांचे लिखा है कि सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद भी कहती थी। सारा, हम देखते हैं कि इब्राहिम ईमानदारों का बाप बन गया। बाप क्या है, इब्राहिम क्या ईमानदारों का बाप है। और सारा के बारे में लिखा है कि सारा क्या करती थी, वो ईमानदारों की औरतों की जो है वो मां बन गई। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो खुदा के हुजूर क्या खुदा को अपने खामन को मालिक कहकर, खुदावन कहकर पुकारती थी। और इसी तरह आज खुदावन हमें भी इस बात के लिए आगाह कर रहा है, तैयार कर रहा है। हम सिर्फ लोगों की तरफ न देखें कि लोग क्या कर रहे हैं, खवातीन डे मना रहे हैं, शायद लोग तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तकरीरें करते हैं या वैसे बयान करते हैं, लेकिन जो कुछ नसीहत में बयान किया गया है, औरत को बड़ा बुलंद मुकाम दिया गया है। औरत को नसीहत में एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है, बड़ा बुलंद मुकाम दिया है। और औरत जो है ये कलाम को लोगों तक फैलाने वाला जरिया है। लोग, खुदा ने इसको खुशखबरी इसके मुंह में रखी है कि तूने खुशखबरी लोगों तक लेकर जानी है। और आज और अगर इसका अपने काम से हट चुकी है, तो आज खुदा आपको याद दहानी कराना चाहता है। खुदा बताना चाहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दुनियादारी नहीं है, तुम्हारा श्रृंगार जो है वो ज़ाहिरी नहीं है, बल्कि तुम खुदा का क्या हो, मक़दस हो। और खुदा का रूह जो है तुम में बसा हुआ है। और खुदा के लिखा है कि खुदा के रूह को तुमने रंजीदा नहीं करना। खुदा का कलाम अब तक रहता है। दुनिया के फैशन बदल जाते हैं, दुनिया की रसूमात बदल जाती हैं, दुनिया की बातें बदल जाती हैं, दुनिया के ख्यालात बदल जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। खुदा का कलाम अब तक रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। हमें कलाम को अपने साथ लेकर चलना है, ना कि लोगों की बातों को कि दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया क्या कर रही है। हमें ये आज लोगों को बताना है हमने दुनिया के लिए क्या करना है, हमने क्या किया है, हमने कितनी जिंदगियां बचाई हैं, कितनी जिंदगियों को अपनी तरफ लेकर आए हैं। और आज अगर मैं फख्र से कहता हूं कि एक मसीही मसीह औरत उठ खड़ी हो तो अपनी कौम को बदल सकती है। अगर मसीह औरत उठ खड़ी हो तो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। अगर मसीह औरत खुदावंद के लिए उठ खड़ी हो तो अपनी कौम को इस गैर मसीहतों में जो है कामयाबी के साथ बरकत वसीला बना सकती है। इसलिए आज खुदा का कलाम जो हमारे लिए बयान किया गया है कि खुदा के कलाम में एक औरत का बहुत बड़ा मकाम है। खुदा ने इसे बड़ा एक रुतबा दिया है, खुदा ने इसे बड़ा मकाम दिया है। लेकिन अगर आज औरत अपने इस मकाम से हट चुकी है, आज इस मकाम तक नहीं है, मैं
कुछ औरत के बाद मर्द के बारे में भी कलाम सुनाऊंगा कि आज हम देखें कि मर्द भी खुदा के कलाम से हट चुके हैं, सिर्फ औरत का नहीं, मर्द भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज उन्होंने भी ऐसी गैर मसीह रस्में इख्तियार रखी करके बहुत बड़े, मैंने देखा लोगों को, आलमों को भी कैसे कलाम के मुनाफी उन्होंने काम शुरू किए। कलाम के मुनाफे बड़े 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 खादम भी मैंने देखे हैं जिन्होंने ऐसे फैशन बना रखे हैं कि ऐसे फैशन बनाए हैं जो कलाम के मुनाफी हैं, जो कलाम के मुताबिक नहीं है। दाढ़ियां बनाना, जो दूसरे काम, बड़े बड़े खातों को मैंने देखा है, लेकिन वो कलाम से हटकर उनके बारे में भी किसी द्वार में बयान करूंगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। लेकिन हमें आज जिस बात के लिए कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मसीहत में औरत का मकाम क्या है, उसको किस तरह अपने कलाम को लोगों तक लेकर जाना है। और हमारा बदन अपना नहीं है, हमारी जिंदगी अपनी नहीं है, बल्कि ये खत्म हो जाएगी और खुदा जो है हमें एक नई जिंदगी देगा। और आज हमने लोगों तक इस पैगाम को लेकर जाना है। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस भी कौम के साथ रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, खुदा चाहता है कि हम नूर की मानद चमके, हमारी रोशनी चमके और आज हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ साबित हो सके, अपने खानदान के लिए एक अच्छी बहन साबित हो सके, अपने खामन के लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सके, अपनी कौम के लिए एक अच्छी लीडर साबित हो सके। और ये औरत को आज खुदा बड़ा मुकाम देता है। आए आज जितनी यहाँ पर खवातीन हैं, आज इस कलाम को अपने साथ लेकर जाए। हमने अपनी कौम को बदलना है, अपने खानदानों को तब्दील करना है, अपने खानदानों की सोच को बदलना है, अपने माशरे को तब्दील करना है। हमने अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जो है वो खुदावंद के लिए तैयार करना है। हमारा श्रृंगार सिर्फ जारी ना हो, हमारा खूबसूरती सिर्फ जारी दिखावे की ना हो, बल्कि हमारा चाल चलन, हमारा रवैया, हमारा किरदार, हमारा सारा कुछ है वो खुदावंद के लिए हो, ताकि हम जहां पर भी हैं वहां पर खुदा के नाम को जलाल दे सके, हम लोगों को खुदा के पास लाने का वसीला बने। आज खुदा ने दुनिया में भेजा है तो खुदा का एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि लोगों को मजबूर करके खुदा उनके पास लाए ताकि उसकी बादशाही भर जाए, उसकी बादशाही में लोग हो। और आज खुदा हमें ये कलाम दे रहा है, आज खुदा ये आवाज दे रहा है हम खुदा उनके पास आए। और आज जिस तरह बार बार मैं कहता हूँ कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा कैसे भी गुनाहगार हो खुदा उससे मोहब्बत करता है। यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए जो गुनाह की हालत में पकड़ी गई, और वहां के आइन के मुताबिक उसकी सजा क्या थी कि संसार किया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा। और जो लोग पकड़ कर लाए, हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह उनके सामने और औरत से कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ। यीशु मसीह ने उसके गुनाह माफ कर दिए। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं मसीहत पे, मसीहत से पहले तो बहुत सारा जुल्म होता था, औरतों को मारा भी जाता था, बेचा भी जाता था, तरह तरह के मसाइल में से गुजरना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह ने, मसीहत ने एक औरत को मुकम्मल जो है वो दर्जा दिया है, बराबरी का दर्जा दिया है। और खुदा यीशु मसीह ने कहा जा तेरे गुनाह माफ हो। यीशु मसीह गुनाहगारों से प्यार करता है, यीशु मसीह गुनाहगारों से मोहब्बत करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं, आज हम अगर इबादतों में देखें तो मसीह जो है मिलकर बात करते हैं, खवातीन भी इकट्ठी होती हैं, मर्द भी इकट्ठे होते हैं। हमें खुदा ने बराबरी का हक दिया है, और ये मसीहत में सिर्फ और किसी में नहीं है कि हम आज सब मिलकर इकट्ठे बैठकर खुदा की इबादत भी कर सकते हैं। और ये मसीहत में यीशु मसीह ने हमें बराबरी का हक दे दिया है। आज हम सब बराबर हैं, और ये बराबरी किसने दी? हमें खुदा ने दी है। और बराबरी कब होती है? जब खुदा हमसे प्यार करता है। हम इस बराबरी को कायम रखेंगे, और कब कायम रखेंगे? जब हम अपने आप की पहचान करेंगे हम खुदा के लोग हैं। खुदा किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। 12 वर्ष की औरत यीशु के पास पलड़ा छूती है, और यीशु मसीह कहता है कि मेरे बदन से कुव्वत निकली है। किसने मुझे छुआ है? यीशु मसीह वहां पर बयान करता है कि ये औरत सबसे ज्यादा जो है ये ईमान में मजबूत है, इसने मुझे छू लिया है, इसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया है, क्योंकि यीशु मसीह दिल से गुर्दे को जानता है। यीशु मसीह सिर्फ जारी सूरत नहीं, वो दिल और गुर्दों को जानते हैं। कई दरख्त में छुपिया सी तो यीशु तो कहता है आए से कहीं थल्ले आ जा, तेरे घर जाना जरूर है। यीशु मसीह हमारे दिलों को जानता है। आए अपने दिल खुदा के लिए तैयार कर रहे, अपनी रूहें, अपनी जिंदगियां खुदा के ताबे कर दे, ताकि आने वाले वक्त में हम खुदा के साथ मुझसे करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन।